Hi guys, welcome to the lecture 2 of the series of chemical thermodynamics. In this lecture, we will read about state of a system. Next, we will learn about various thermodynamic processes, and then we will try to understand a very important phenomena in thermodynamics, that is reversible and irreversible processes. So, without wasting any time, let us begin. Okay. So, as I said in the previous class, कि any system is defined by various thermodynamic variables like pressure, volume, temperature, heat, energy, etc. These defined variables constitute the state of a system. Suppose there is a container in which there is a gas which is at P1 pressure, V1 volume, and has T1 temperature. This, by bringing in some changes, there are some changes done, which now changes the state of the gas to a new pressure P2, to a new volume V2, and a new temperature T2. So this we will say that a thermodynamic process has taken place and the state of the system has changed from state A to another state B. All right. So what is now you all have got the idea of thermodynamic process. What is a thermodynamic process? Thermodynamic process are those changes which brings a change in the state of a system. Okay. So there are various thermodynamic processes which we will try to understand one by one. It is very important, it is very fundamental, but at the same time it is very important to understand the nuances of each thermodynamic process in detail. So first जो है हमारे पास, that is isothermal process. Isothermal is a Greek word. Iso means equal, thermal means temperature. That is, isothermal process is a process in which temperature of the system is constant. Temperature of the system is constant. ठीक है. Here temperature is not changing during the course of entire process. Temperature is not changing. तो मैं लिख सकता हूँ delta T is equal to 0 और इसी को मैं लिख सकता हूँ कि dt is equal to 0. जो temperature change है ना वो नहीं होगा इस process में. ठीक है. For example, boiling of water at constant temperature. जब हम लोग water boil करते हैं and water reaches 100 degrees Celsius, then the water is getting boiled. Okay, the vaporization is taking place. But we do not see any change in the temperature reading. All right, but still heat is added. Heat is being added to the system, but the temperature is not changing. So such a process is known as isothermal process. Okay, that is when the state of a system changes but the temperature remain constant, there is no change in the temperature of the system. Such a system is known as isothermal process. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि isothermal process में क्या होता है, there is no change in the temperature of the system. Next we have isobaric. What is isobaric? So baric means weight.
Baric means weight. Weight is equivalent to pressure. So a process in which there is no change, the pressure remains constant during the period of change, such a process is known as isobaric. So मैं लिख सकता हूँ भाई कि dp is equal to 0. Change in pressure, there is no change in pressure, so dp is equal to 0. For example, अगर if we are boiling water in an open vessel, ठीक है, मैं water boil कर रहा हूँ in an open vessel, this is the water level, so the pressure is always atmospheric pressure, ठीक है. तो यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है ना, दैट इज टेकिंग प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, सो सच अ प्रोसेस इज आइसोबेरिक. काफी सिंपल है. सच अ प्रोसेस इज आइसोबेरिक. dp is equal to 0. So here we will mention that in isobaric process there is no change of pressure in the entire duration of the change. Next, adiabatic को समझने से पहले आइसोकोरिक समझ लेते हैं. आप समझ ही होंगे. आइसोकोरिक is when there is no change in volume during the course of the experiment. मतलब क्या, अगर मैं यही boiling of water को ऊपर एक लीड डाल के करा दूं, ठीक है, सो नाउ ये जो वॉल्यूम है ये तो कांस्टेंट हो गया. अब जो भी अंदर चेंजेस होंगे वो विल टेक प्लेस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. dv विल बी इक्वल टू 0. दैट इज देयर इज नो चेंज. जो इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम होगा. मतलब एनी चेंज टेकिंग इनसाइड अ क्लोज्ड वेसल, दैट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस. तो ये भी काफी सिंपल है. नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज is adiabatic. Change. What is an adiabatic process? So adiabatic boundary हमने देखी थी जहाँ पे there is no transfer of heat, ठीक है. So adiabatic change is such a change where there is no exchange of heat. Q का exchange नहीं होता है, heat का exchange नहीं होता. That is delta Q और dQ is equal to 0. dq is equal to 0. There is no heat exchange between the system and surroundings, ठीक है. Q कभी चेंज ही नहीं होता है, ठीक है. ये अब बात हमें याद रखना है. मतलब क्या, वैसा सिस्टम जो परफेक्टली इंसुलेटेड हो, जो परफेक्टली इंसुलेटेड हो. जैसे जो थर्मस फ्लास्क आता था, थर्मस फ्लास्क आता है, ठीक है, जिससे कि हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. तो उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे दैट विल बी टर्म्ड एज एडियाबैटिक चेंज. दैट विल बी टर्म्ड एज एडियाबैटिक चेंज. ओके. और एक चीज और हम जानते हैं, मैंने एक पहला रिलेशन आपको बताया था कि जो डेली होता है वो Q प्लस W होता है. सो क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो Q होगा विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. चेंज इन Q, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट. सो जो इंटायर चेंज इन एनर्जी है और जो एनर्जी ट्रांसफर होगा दैट विल बी ओनली थ्रू वर्क डन. सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस. लेकिन जब हम बाद में इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करेंगे तो वी विल सी दिस इन डिटेल. सो मैं अपडेट कर देता हूँ कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है. एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा dq जो होता है दैट इज 0. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ये हम बार बार देखेंगे. एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस होता है जिसको वी से इज साइक्लिक प्रोसेस. क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस? सपोज कीजिए कि देयर इज अ सिस्टम इन स्टेट ए, ठीक है. स्टेट ए अब आप जानते हैं क्या होता है, पी ए वी बी वी ए सॉरी एंड टी ए, ठीक है. अगर आफ्टर undergoing certain changes if this system comes back to state A only, ठीक है, कुछ चेंज हुआ बीच में, सपोज करिए कि ये स्टेट बी भी पहुंचा होगा, उसके बाद ये इधर आया तो कोई एक सी स्टेट भी पहुंचा होगा, बट एट द एंड इट हैज फाइनली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. सच अ प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस, या इस पाथ को हम बोलते हैं कि ये दिस चेंज वाज साइक्लिक इन नेचर, ठीक है. और साइक्लिक इन नेचर की स्पेशलिटी क्या है कि जो चेंज इन एनर्जी होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. जब हम लोग स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे सो इट विल गेट मोर क्लियर.
स्टेट फंक्शंस एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, स्पेशली फॉर माय ग्रेजुएट फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें बहुत सारा हम लोग को मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व होगा, वेयर वी विल ट्राई टू प्रूव कि वेदर इट इज़ अ स्टेट फंक्शन और नॉट। जब हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्टेट फंक्शन होता है दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स इन नेचर, वो बात की टॉपिक है। अभी बस इतना समझने की जरूरत है कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, हमारा चेंज इन एनर्जी इज 0। सिमिलरली इसमें इंथाल्पी चेंज भी 0 होता है। ये सब हम लोग समझेंगे, कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। सो वी आर डन विथ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ये 5 बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, और हम लोग देखे भी कि दीज आर ऑल्सो नोन एज पाथ्स। थ्रू वेरियस पाथ जो है चेंज ऑकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस इज सच अ प्रोसेस which proceeds through series of equilibrium steps, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इट प्रोसीड्स थ्रू सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेप्स। सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेप्स, सपोज कि एक चेंज है, ए से डी स्टेप जाना है, सो देयर विल बी इनफिनाइट सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। और ये आपस में, ये सारे चेंज जो हैं दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम, थ्रू अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। हर स्टेप जो होता है वो एट एन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। अब बताइए तो, इतनी ज्यादा स्टेप्स में अगर होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट में तभी पहुंचता है जब जब आप उसको कुछ टाइम दीजिए, ठीक है, मतलब गिविंग द सिस्टम सम टाइम to each change for their properties to come at a constant value. So this is a very slow process. Reversible processes are very slow process. The first property of reversible process is that it proceeds through series of equilibrium steps. Second is that it is a very slow process, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा कि नो चेंज मतलब क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस का एक और बात क्या है कि इट कैन always be revert back, हमेशा हम लोग इसको रिवर्स बैक कर सकते हैं टू इनिशियल स्टेट, दोनों का, सिस्टम का भी एंड सराउंडिंग्स का भी, टू इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है। जो रिवर्सिबल चेंज है दैट कैन बी ऑलवेज रिवर्स्ड बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम एज वेल एज surrounding. So let us try to understand reversible change using an example. The example is of vaporization of liquid in a closed vessel at constant temperature. Suppose that we have temperature at 25 degrees Celsius, and we are talking about there is some liquid in a vessel and this vessel is closed. This is water and this vessel is closed. So what is happening? We know that water has a property that it will vaporize. So there will be few particles of the water that will uh, you know get into the gaseous form, vaporization. Slowly and slowly a time will come when and will these will exert a vapor pressure. These gases will exert a vapor pressure. Slowly and slowly a time will come when this vapor pressure will be equal to the external pressure, that is the atmospheric pressure at that time. And after some time, more water vapors, more water particles are changing into water vapor in due time. After some time, when the vapor pressure will be equal to P external, there will be the beginning of condensation of water molecules, of water vapor. So after some time in this container, number of water molecules
vaporizing will be in equilibrium with number of water molecules undergoing condensation. So a dynamic equilibrium will be established in this container at that vapor pressure which is equal to the external pressure. ठीक है, so ये हम लोग फिर बोल सकते हैं कि this is a reversible change. क्यों? क्योंकि अगर if you want to increase the concentration of water, मतलब the amount of water, then क्या करेंगे हम लोग, P external को हम लोग slightly infinitesimally बढ़ाएंगे. So क्या होगा, there will be increase in the rate of condensation of water and as per say amount of water. और आपको slightly अगर vapor pressure, amount of vapor pressure increase करना है, so we have to diminish this external pressure by little amount. तो क्या होगा, this number of water molecules which are vaporizing, they will increase. ठीक है, so this vaporization of liquid in a closed vessel at constant temperature is a reversible process. Moreover, जो reactions equilibrium steps में हो रहे हैं, slow reactions, they are also reversible in nature. Next जो topic है, that is irreversible change, irreversible process. So irreversible process क्या होता है? सबसे पहले तो जो हम लोग रिवर्सिबल के प्रॉपर्टीज देखें उसको हम लोग अपोजिट कर देते हैं कि क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस वेर स्लो, तो ये स्लो नहीं होगा, दीज आर रैपिड प्रोसेस, दीज आर रैपिड प्रोसेस, इसीलिए नो टाइम फॉर द सिस्टम टू अटेन इक्विलिब्रियम. ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए सिस्टम गेट्स नो टाइम. तो जो इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है, डू नॉट प्रोसीड वाया इक्विलिब्रियम रिएक्शन. ठीक है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के द्वारा ये प्रोसीड नहीं करता है. तो क्या होगा, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, ठीक है, वैसे प्रोसेस जो खुद व खुद हो रहे हैं, दे आर इररिवर्सिबल, दे आर इररिवर्सिबल. आप समझिए कि मैक्सिमम जो प्रोसेस है ना, वो क्या है, इररिवर्सिबल. जो रिवर्सिबल प्रोसेस है दैट इज एन आइडियल प्रोसेस. ठीक है, इट इज नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल. ठीक है, ये हमने एक सिस्टम देखा. सो देयर एग्जांपल्स आर फ्यू. ठीक है, जितने भी स्पॉन्टेनियस चेंजेस हैं, दे आर इररिवर्सिबल इन नेचर. और इसको हम लोग रिवर्ट करने के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प कैन नॉट बी. एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज करनी होगी ताकि इररिवर्सिबल जो प्रोसेस जो चेंज हुआ है उसके स्टेट को हम इनिशियल स्टेज तक पहुंचा सकें. ठीक है, और इररिवर्सिबल चेंज में जो डेल एस होता है यूनिवर्स का, वो ग्रेटर देन 0 होता है. ये जब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है कि जो एंट्रोपी चेंज है यूनिवर्स का, वो ग्रेटर देन 0 होगा. और जब हम इररिवर्सिबल चेंज को क्या करेंगे, जब हम लोग इररिवर्सिबल चेंज को उसके इनिशियल स्टेट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो वी हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क. और वहां पे उस प्रोसेस का जो हम लोग रिटर्न प्रोसेस करेंगे उसका क्या होगा, डेल एस, वो लेस देन 0 हो जाएगा, विच इज अ वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो वायलेशन हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का. ठीक है, सो दिस इज रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस. जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे, देन we will see the mathematical significance of these processes. ठीक है, so irreversible process क्या होता है, this is a work done against constant external pressure, मतलब एक sudden change होता है, and all spontaneous processes are irreversible in nature. वैसे ही reversible process क्या होता है, they always take place through a series of steps which are at equilibrium with each other and can be reversed without any external help. इसका मेन हम लोग जब मैथमेटिकल्स, जब हम लोग इसके अंडरलाइंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स पढ़ेंगे विच वी विल टेक ओवर आफ्टर वी लर्न फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तब ज़्यादा हम लोग को ये इंटरटेनिंग लगेगा और तब इसका हम लोग को ज़्यादा सिग्निफिकेंस पता चलेगा. ठीक है, सो ये वीडियो मैं शॉर्ट ही रखता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बेसिक कंसेप्ट्स थे जो हमने समझ गए. थैंक यू, बाय.